हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and click the bell icon for the latest updates from Sugar Medias. I believe when it comes to mental health, I believe being mindful, I think, is more of a virtue than anything else. Being mindful. And another thing I believe is that the chaos usually is inside us, never outside. So, I don't really believe much in the fact that meditate करना है तो हिमालय की चोटी पे चले जाओ या किसी शांत जगह में बैठ जाओ, क्योंकि अब जिंदगी भर तो शांत जगह में बैठेंगे नहीं. You've got to live in the society and live in this world and navigate this world with all the noise and all the chillappo outside. So you've got to train your mind to be mindful of the fact that if you are focusing on something, then the outside noise should not bother you. Meanwhile, I have saved, like they say, the best for the last. Swatiji has has a lifetime of experience working as a voice talent, and उन्होंने बहुत जिंदगी और इस इंडस्ट्री को बहुत देखा है. She's probably seen two generations, if not three, of voice artists, make their mark, rise and fall, some rise and keep rising. She herself has had a very accomplished career, and even today she remains very relevant, very valuable to the industry. It's just that she has decided to chart out a new course of in her life and pursue another passion, which is baking. So a very successful individual, a very successful talent, and like I said earlier, the voice of wisdom for many of us in the industry. Swati ji, such a pleasure to see you. And दो चीजें. पहली बात, you are looking absolutely gorgeous. Thank you so much. That's not an exaggeration at all. मैं शायद बहुत mild तरीके से तारीफ कर रहा हूँ आपकी. और दूसरी बात, that the Warli painting behind you on that wall is absolutely stunning. Is that done by you? Yes, very much. Really? Very much done by me. Wow. So voice artist, baker, artist, painter. So many different facets of your personality. That's my way to handle my depressions, my tensions, my way of handling it कि आज कोई वॉइस ओवर का काम नहीं है, आज मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग पे नहीं बुलाया, या एक हफ्ता हो गया, मुझे वक्त ही नहीं मिलता ये सब सोचने के लिए. इसे कहते हैं पहली बॉल पे छक्का मारना. You've hit the ball out of the park on the first ball, क्योंकि आपने पहले स्टेटमेंट में you've given us a very important nugget of wisdom that as a performing artist, irregularity of work is going to be a part of your life. So develop another passion, develop a hobby that will keep you mentally engaged and keep the excess insecurities at bay. If I'm not wrong, that's something that you're trying to say. Yeah, and that's absolutely. Absolutely right. That when जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया था, that was way back 45 years back. The days were really different. I entered as a Marathi voiceover artist. I met Vanmali ji, okay, and तब क्या होता था ना, तभी इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी थी. तो जब I started with Marathi, and then I said I need to hone my skills. As I say ना कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता कभी सोचने के लिए कि मैं अब क्या करूं. Learning Hindi, clearing my diction, हिंदी की जुबान साफ करना, वो हुआ. उसके बाद क्या हुआ, राइटिंग स्किल्स. मैं सबसे वही कहती हूँ कि कीप सर्चिंग, कि आप क्या कर सकते हो. जस्ट एक पे आप डिपेंड करोगे ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट. करेक्ट. हाँ, तो आप अगर फ्रीलांस कर रहे हो तो यू हैव टू फाइंड आउट मेनी वेज एंड मीन्स टू स्ट्रगल. जो एक ब्लैंक पीरियड होता है आपके पास कि मुझे कल किसी ने बुला, कल मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, या अभी 4 दिन मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग. स्टार्ट राइटिंग. आप ट्रांसलेशन करना शुरू करो. आप पेंटिंग अगर करना चाहते हो वो करना शुरू करो. लर्न लैंग्वेज. आप
आज मुझे कई बार ऐसे लगता है कि आप अपनी खुद की मातृभाषा भी साफ नहीं बोल पाते हो। हाँ, तो पहले तो मैं सबको कहती हूँ अपनी मातृभाषा पहले साफ बोलना सीखो। अगर वो आप सही ढंग से बोल पाओगे तो देन यू मूव ऑन टू द अदर लैंग्वेजेस, लर्न लैंग्वेजेस, बिकॉज पता है कि किस लैंग्वेज की कब आपको जरूरत पड़े। दैट्स द वे आई वेंट ऑन ऑल दीज इयर्स। दिस इज सो अमेजिंग, क्योंकि ये एक गुरु मंत्र, दिस इज वन मैजिक मंत्र जो एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, चाहे आप एक्टर हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, या कुछ भी करते हो, आई थिंक ये इट्स सच अ मैजिकल थिंग। अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत रिजॉल्व चाहिए होता है। यू नीड टू अगेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, एंड यू नीड टू एक्चुअली हैव ग्रेट मेंटल हेल्थ टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। ताकि आप, और आपको क्या पता कि आपका जो शौक है, जो नए नए शौक आप जिसको कहते हैं पाल रहे हो, आगे जाके वो किस तरह से आपका व्यवसाय बन जाए आप नहीं जानते। और उसी के साथ Absolutely. it will keep your mind well oiled, it will keep you well oiled, and it will keep you in motion. Occupied, oiled, yes, yes. जैसे किसी एक को फॉलो मत करो। आप अगर वॉइसिंग भी कर रहे हो ना, तो जस्ट डोंट फॉलो वन पर्सन। अगर आपके गुरु हैं तो अलग अलग लोगों में आपको अलग अलग चीजें सुनने और आत्मसात करने मिलती है। जैसे मैंने लता जी से डिक्शन सीखा, आशा जी के गाने सुन सुन के मैंने नजाकत सीखी, आपकी आवाज में नजाकत कैसे आ सकती है। रफी जी की वॉइस से मैंने ठहराव सीखा। यू नो, आई लर्न फ्रॉम, कोई सिखाने वाला तो था नहीं उस वक्त। स्टेज, यस, डू थिएटर, आई वॉज डूइंग थिएटर से आपको काफी कुछ सीखने मिलता है, बिकॉज you're just not like this in front of the mic, it's your entire body which is performing. Do theater, आपकी आवाज खुलती है। आप सिर्फ यहाँ से बात ना करने के बजाय आप पूरे आपके नाभि से बात करते हो। So I feel there is no time to get depressed and keep learning. To keep your balance in life and to keep your mind का balance, especially keep moving जैसा कहते हैं अंग्रेजी में, उसी तरह to keep your balance as a creative person, keep investing your time in doing something or the other. कई लोगों ने हमसे comments में भी पूछा था, किसी ने पूछा था how to develop a strong mind. तो I think इससे बड़ा सुझाव क्या होगा कि अगर strong mind develop करना है, अगर आपको अपनी strong muscles develop करनी है, तो हर रोज आप वर्जिश कीजिए। उसी तरह अगर दिमाग को स्ट्रॉन्ग डेवलप करना है तो हर रोज मेंटली इन्वॉल्व रखिए खुद को, कीप डूइंग समथिंग और द अदर। बिल्कुल बिल्कुल खुद को इन्वॉल्व रखना कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल कॉन्स्टेंटली। एक तो रात को मैं सोचती हूँ दर्पण कि आज मैंने दिन भर क्या किया, और सुबह उठ के डिसाइड करती हूँ आज मैं क्या करूंगी। if there is a recording, fine. If there is no recording, fine. I'll plan. Okay, I developed a real fascination with baking 5 years back. It's creativity. It's at the end of the day, as an artist, you want to create. आप स्टूडियो जाके क्या करते हो? You create. You speak. Either you dub or you speak. So you create. So creativity पे मैं और क्या क्या कर सकती हूँ? तो I found this as a Pandora's box जैसे खुल गया मेरे सामने. So I keep creating there, and that's what I keep telling everybody. या तो अगर आप वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसके साथ साथ आपको, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो। अगर आप अच्छी तरह से दूसरी लैंग्वेजेस बोल सकते हो तो उन्हें डेवलप करो। जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो उसे सही ढंग से बोलना सीखो। सो और क्या चाहिए? how do you get time to depress? हाँ, don't compare. That's the first thing. Never compare yourself कि वो उस जगह क्यों है और मैं इस जगह। आप अपनी जगह सही हो। आप जहां हो ना, आप उस जगह बिल्कुल सही हो। So just be there. Don't compare at all. अपने आप से लड़ो, नॉट अपने आप जो डीमंस है, अंदर जो डीमंस है उनके साथ आप खुद लड़ना सीखो पहले। The fight is within. The fight is always within. Yes.
and the only person you need to conquer in life is your own mind, and that's the only thing you need to conquer. Exactly. Absolutely, yeah. और कितना सारा पढ़ने को है. Keep reading aloud. Correct. अब जोर से कितने लोग तो माइक के सामने साफ शब्द नहीं बोल पाते. क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह खोल के बात नहीं की है. सो जस्ट रीड अलाउड एवरी डे. कितना है कुछ करने को. डिप्रेस होने को टाइम कहाँ है, किसके पास है? What a lovely thing to say कि डिप्रेस होने के लिए टाइम ही होना चाहिए लाइफ में. इतना कुछ, क्योंकि आपको गिफ्ट मिली है और ये वन वे टिकट है आपका. एक गिफ्ट है, इसका कोई रिटर्न नहीं है. तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. So Swati, आपने like you said 45 years, as a part of this industry, as a talent. आपने 3 generations को देखा है. You've seen 3 generations of artists. Yes. Which is immense, which is what a wealth of wisdom, what a wealth of experience for you. अगर आप आज की तारीख में, अगर आज की जो younger generation उनकी बात करें और mental strength को लेकर अगर हम बात करें, तो how do you see them? How evolved, aware are they when it comes to their mental health? सब कुछ बहुत जल्दी पाना चाहते हैं. Instant gratification. जैसे दर्पण, यू आर अ वॉइस ट्रेनर, आप कंडक्ट करते हो वर्कशॉप्स. आपके पास भी ये जो नए बच्चे सब आते होंगे. फर्स्ट थिंग दे मस्ट बी, अगर उनकी सीडी तैयार की तो मुझे पहला जॉब कब मिलेगा और मुझे पैसे कितने मिलेंगे. सो आई स्टार्टेड विथ 425 रुपीज माई फर्स्ट जॉब. और उस वक्त लगा था माय गॉड इतने सारे पैसे. 425 वे बैक 45 years बैक. बट देन मैंने कहा दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ये तो बस आपने शुरुआत की है, पर अभी आपको इसमें आगे और जाना है. तो ये जो इंस्टेंट मनी है ना, कि अब मुझे बस मैंने कोर्स कर लिया और अब मुझे काम मिलना चाहिए. आई थिंक यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, है ना. तो मुझे बिल्कुल. हाँ, यही चक्कर है कि कई बार क्या होता है, when success comes to you very early, sometimes you don't get enough time to get trained to handle failures. Yes, ये आप कह रहे हैं कि ये आजकल आपको कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि आज की तारीख में सक्सेस जल्दी आ जाती है. ये सक्सेस comes to you quickly. एवेन्यूज इतने खुल चुके हैं, एवेन्यूज इतने हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी हो गई हैं. अपॉर्चुनिटीज. यस. तो मैंने अभी even 2 years back I started dubbing direction. वो मेरे लिए नया था. मैंने कुछ नया सीखा वहां पे जाके, something new. तो मैंने देखा कोई बच्चे 2-2 साल they were just doing crowd dubbing. आप जब क्राउड करते हो ना, बहुत कुछ सीखते हो उसमें. कुछ बुरा, आप ये कोई भी जॉब करने जाते हो, बैंक का जॉब करने जाते हो, कोई भी इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आपके पास 6 महीने से 1 साल का आपके पास ट्रेनिंग पीरियड होता है, राइट? करेक्ट. तो वो तो यहाँ पे भी है. आप जैसे ही एक सर्टिफिकेट लेके आए और आपको लगता है कि बस अभी मुझे तो आई शुड गेट हीरो का काम, हीरोइन का रोल मुझे मिलना, नहीं होता है ऐसे. यू हैव टू कीप कितने सारे छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं while you are dubbing, while you are doing रेडियो प्ले. अच्छा, रेडियो प्लेस एक जमाना था जब रेडियो प्लेस से आपको काफी सीखने मिलता था, तो अभी वो तो है नहीं, वो ज्यादा नहीं हो पा रहा है. तो रेडियो से आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करना सीखते हो. दैट्स व्हाट यू शुड रीड प्लेज, हिंदी प्लेज, whichever language you want to create your career. Learn, read those characters अलग अलग हिसाब से. ये कैरेक्टर कैसे बात करेगा, वो कैरेक्टर किस तरह से अपने आप को वॉइस से प्रोजेक्ट करेगा. So all these things this new generation has to learn and practice. So what you're saying is that comparatively आज की जो नई जनरेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं success comes easily, or not easily but sooner than earlier, because of a lot more avenues. कहीं ना कहीं you need to train their minds to also be ready for failure, ताकि ऐसा नहीं हो कि
इतनी जल्दी उड़ान भर ली कि जब वापस जमीन पर आए तो हैंडल नहीं कर पाए. So this is an important, tip or an important perspective on mental health for today's younger generation, especially Yes. performing artists. Yes. That's a that's a very valid point. बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत होता है और जैसा आपने कहा कि हमारे पास भी जब any of us, people like us, we have a lot of people. आपके पास कितने लोग आते होंगे, inspiring talent, younger, fresh Yes. talent जिसको हम कहते हैं. एंड उनका पहला सवाल ये होता है कि हमको काम मिलेगा. और मेरा यूजुअली जवाब होता है कि क्या आपको काम आता है? क्योंकि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, सवाल कि आप कितना पैसा चाहते हैं. सवाल ये है हाँ. कि आप कितने पैसों के लायक हैं और आपका डिजर्विंग क्या है अभी, एंड वेदर यू नो द क्राफ्ट. सो कहीं ना कहीं ये भी एक मेंटल हेल्थ का बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा रिफ्लेक्शन पॉइंट है कि develop yourself to become stronger internally so that you are ready for that long trudge or that Yeah. struggle to master the craft, which is so Yes. important. और उसके पहले इतनी जल्दी हार मत मान, क्योंकि कई बार क्या होता है स्वाति जी, many people give up too soon. हम जिसको कहते हैं गिविंग अप टू सून, क्योंकि या तो आपने तैयारी की नहीं या आपने कच्ची पक्की तैयारी की. दोनों ही केस में नतीजा ये होता है कि जब आप रियल मैदान में जाते हो तब पता चलता है कि आप तो तैयार हो ही नहीं. तो अगर आम Correct. कच्चा है तो वो मीठा नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको पकने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको जल्दी थी मार्केट में जाने की. तो वो सॉरी टू कट यू दर्पण, तैयार हो या नहीं ये तो और आगे की बात है. मुझे तो अभी मुझे लगता है कि whenever you're facing a mic or a camera, you should have that एक टेंशन मन में हर बार होनी चाहिए कि whether I'll be able to deliver that person जो मुझे करना है, whether my voice is going to do that. फिर उसके बाद वो सारे पैसे और वो सारी बातें बाद में आती है. एक डर का एलिमेंट जरूरी है. देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फियर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट हेल्प्स वो फाइट. वो फियर होना बहुत जरूरी है. वो जो बन चुके, भाई अभी तो मैंने 4 एड्स कर लिए, 2 फिल्में कर ली, अभी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं होता एवरी टाइम. बिकॉज मुझे कई बार ना पहले पूछा जाता था, अच्छा आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, अच्छा आप स्टूडियो में जाते हो तो आपको फिर तो वो तो देते होंगे, फिर आप पढ़ के वो सब मिले. नथिंग. वी नो, स्पेशली एट फिल्म्स, यू नो, व्हेन यू गो टू द स्टूडियो यू नो व्हिच कैरेक्टर यू आर सपोज्ड टू डू. आपको तब जाके पता चलता. देन यू नो आपके पास वो लाइनें आती है, अच्छा वो ऐसे बोलना है, अच्छा मैं मैच कर पाऊंगी कि नहीं, यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज वेयर योर स्किल कम्स, थिएटर बैकग्राउंड कम्स टू हेल्प यू. अगर आपने रेडियो प्लेस किए हैं तो आप सोच सकते हो कि उस वॉइस को, क्योंकि वहां पे तो कुछ तो डिफरेंट बोला हुआ होता है, समटाइम्स द लैंग्वेज इज डिफरेंट. तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर को आपकी आवाज के थ्रू मैच करना, इट्स अ बिग डील. जितना आसानी से it's also a great test of your mental strength, एब्सोल्युटली of your reflection ability, of your reflexes. रिजेक्शंस भी होते हैं. योर वॉइस इज रिजेक्टेड, यू शुड बी एबल टू टेक दैट. बिल्कुल बिल्कुल. रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन भी होता है कभी कभी. ह्यूमिलिएशन भी होता है, नहीं वो थोड़ा ना सही नहीं हो रहा है. अच्छा, डब्ड फिल्म्स में क्या होता है, देयर इज अ परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ यू. एड फिल्म्स में यू हैव टू क्रिएट अ परफॉर्मेंस, बिकॉज कई बार वहां पे मॉडल्स के साथ कुछ भी, आई मीन दे हैव जस्ट सेड दोज लाइंस, बट यू हैव टू क्रिएट दोज लाइंस कि वो आप फेस के साथ उसको क्रिएट करके इट शुड लुक नेचुरल. तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बिल्कुल निरुत्साहित कर सकती है, क्योंकि आपको जो डायरेक्टर वहां बैठे हैं, 2 टेक हो गए, 5 टेक हो गए, 10 टेक हो गए, 15 टेक हो गए, ब्रेक हो गया, नो इट्स नॉट वर्किंग. अच्छा, आप यहाँ बैठ के सोचते रहते हैं कि अभी मैं इसको ठीक कैसे करूं. तो वो जो स्ट्रॉन्ग माइंड और वो जो बार बार करने की, यू नो, उसी जेस्ट, उसी उत्साह से उस लाइन को बार बार बोलना, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. एब्सोल्युटली. बट स्वाति जी, आपका इतना लंबा करियर रहा है, कैन यू टेक अस थ्रू एनी वन इंसिडेंट लाइक दिस, जब आप बहुत निरुत्साहित आपने महसूस किया खुद को,
और आपने बहुत फेलियर को देखा, और फिर आपने कैसे, हाउ यू नो, वी वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन मेंटल स्ट्रेंथ, on your own mental health. How did you navigate that period? Because that will be a great inspiration for a lot of youngsters who are probably watching us today. पिछले मेरे ख्याल से 3-4 सालों से मैं मूवीज डब कर रही हूँ. उससे पहले तो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ एड फिल्म्स. तो एक एड फिल्म मैं कभी भूल नहीं सकती जिंदगी में. एक ही लाइन थी. अच्छा, दीज वन लाइनर्स आर वेरी ट्रिकी. एक ही लाइन है आपके पास, हो जाएगा. एक ही लाइन. सर दर्द है, सैरेडॉन ले लो. नाउ आई कुडंट गेट दैट सर दर्द. वो मुंह से निकले ना मेरे, सर दर्द. वो सर दर्द हो रहा है, सर हो रहा है. इट्स नॉट कमिंग दैट डे. इट्स नॉट हैपनिंग. अच्छा, देन दे सेड, एक ही लाइन है ना मैम की, थोड़ा रुकने बोलो, बाद में लेते हैं. ओके. वो क्या होता है ना, वहां से माइक्स बंद कर देते हैं और वो आपस में वो लोग डिस्कस करते हैं. एंड हियर यू आर स्टैंडिंग अलोन. नो, यू कांट हियर एनीथिंग. यू कांट हियर एनीथिंग. बट उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि दे आर डिस्कसिंग कि ये तो मैम से नहीं हो पा रहा है, क्या करें. अच्छा, हियर यू आर अलोन इन दैट क्यूबिकल, और वो क्यूबिकल ऐसे लगता है कि अभी आपका आके गला दबा देगा एनी टाइम, यू नो. तो वो समझ में आता है कि अब क्या करें, ये तो वर्कआउट नहीं हो रहा है. तो मैंने खुद ही से उनसे कहा कि सर, आई थिंक आज मेरा सर दर्द नहीं निकल रहा है. So I think you better call somebody else. आज नहीं हो पा रहा है. Then said नहीं, आप बैठिए. You know, they themselves were feeling bad कि एक ही लाइन है और मैम से नहीं हो पा रही है, तो ये कैसे. I mean, I have been working with that production house for quite some time. तो बैठिए ऐसे नहीं होगा. Because और क्या होता है ना, आप कहीं तो वो कॉन्शियस ज्यादा जितने होते हो, तो that depressed me a lot that day. I came home. अच्छा, मैं गाड़ी में, कार में ना, सर दर्द, अरे आ तो रहा है, तो वहां क्यों नहीं आ रहा है, वहां क्यों नहीं आ रहा था. You know, so sometimes as you, I think you had बिनाइफर या किसी से कहा था कि उस रोज अगर काम नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको जस्ट उड़ा दो. वो नहीं हुआ आपसे. It was not there for you. वो one line उसको लेके मत बैठो. हाँ, पर वो 2-3 काफी दिनों तक मेरा सर दर्द बन के रहा अभी भी. So that was so the striking thing here is के you took it in your stride. कि होता है, कभी फेल होते हैं, कभी कोई चीज नहीं बनती है, कभी बात नहीं बनती है. It's all right. The word here is let go. It's all right. Move ahead. It's a long life. और किसी भी वाक्या को, किसी भी इंसिडेंट को इतना बड़ा मत बनाए, नहीं बनाए कि वो आप पर हावी हो जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मर्स, हमारा काम आवाज का जितना है, उससे ज्यादा हमारा काम दिमाग का है. और it is important for us to be in a good frame of mind. Varna, if in the morning, if you're not in a good frame of mind for one recording, probably it will have an effect throughout the day. So that's an important, that's again an important lesson, you know, that yes, don't take things to heart too much. This can happen. This can happen. This can happen, and this will happen. Will happen with you. Yes. Absolutely. You know, स्वाति जी, एक और बहुत वो है कि important चीज है कि जो आज की जनरेशन है, and the way you know they are working, especially in the current scenario, जहाँ पर हमने पहले भी इस बारे में पिछले पैनलिस्ट से भी बात की कि हम कहीं ना कहीं भीड़ में भी हम अकेले होते जा रहे हैं. आपने वो एक जमाना देखा है, आपने एक ऐसा जमाना देखा है जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था. तब सोशल का मतलब रियल होता था, और यू नो सब चीज रियल होती थी, वर्चुअल कुछ नहीं था. तो ऐसे में यू नो व्हेन यू लुक एट थिंग्स टुडे, you look at things pehle, do you think we are getting more lonely today in spite of having so many avenues, so many digital avenues? Or you think कि ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है. यस, एज बिनाइफर सेड कि आप भीड़ में भी
भरी रूम में भी अकेले फील कर सकते हो या एक रूम में एक आदमी के साथ भी अपनापन महसूस कर सकते हो. यस, बट I again underline have a good set of friends. और एक दो अच्छे दोस्त आपको मिल गए, उनके साथ अगर आप सब कुछ विदाउट, अगर वो आपको बिना जज किए आपसे आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, तो then you are the luckiest person on the earth. And I have one person. I have a very good friend. She will any time of the day, even at 2 a.m. in the night, I can call her. I can speak to her. Anything she will without judging. She will be just listening to me. And I think it's very important to have friends because एक ज़माना था, अभी तो मैं नए घर में शिफ्ट हुई, हमारी सोसाइटी में हमारे चारों फ्लैट्स के दरवाजे खुले होते थे. सो आप घर जाओ तो इट इज लाइक वन बिग होल फैमिली. तो आप अनवाइंड करना बहुत जरूरी है. अब मैंने देखा कि बहुत सारे डबिंग आर्टिस्ट छुट्टी नहीं लेते, ब्रेक नहीं लेते, काम चला जाएगा. Come on. Such an important point, Swati ji. Please go on. Come on. Don't do this. Okay, चला जाएगा. वो I have gone through it. I mean, I understand that fear, क्योंकि अगर आप जैसे मैं अगर मेरी बेटी के यहाँ जाती हूँ 1-2 महीने के लिए, तो मुझे फॉर एवर मुझे वहां भेजा जाता है कि स्वाति जी तो है नहीं. आई अंडरस्टैंड दैट फियर. तो वो तो बेटी के घर चली गई, अभी तो वो इंडिया में है नहीं, तो वो आई एम हियर, बट स्टिल दैट न्यूज विल बी रोलिंग कि शी इज नॉट हियर. और इफ यू फॉल इल, पीपल हाइड दैट. करेक्ट. पीपल हाइड दैट इस डर से कि मुझे कल काम पे नहीं मिला. डोंट डू दैट. इट्स ओके. छुट्टी लो, ब्रेक लो, गो. बिल्कुल नहीं लेते डर से. मैंने देखा है कई सारे आर्टिस्ट बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते. डे मतलब सुबह जो आवाज यहाँ पकड़ के जो जाएंगे वो रात भर काम करेंगे. डोंट. कितनी बड़ी बात बोली आपने स्वाति जी के टेक अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेने से ही आप खुद को रिचार्ज कर पाएंगे. मोबाइल फोन भी जो आपका है उसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है ना फाइनली एंड ऑफ द डे. बिल्कुल. अगर आप मशीन की तरह मत बनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपने बहुत बड़ी बात कही है स्वाति जी. कहीं ना कहीं ये जो हमारा नॉन स्टॉप लाइफस्टाइल है वो भी इवन दैट इज टेकिंग अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ. एंड अभी पिछले 3 महीने में हमें ये जो जबरदस्ती हमें बिठा दिया गया घर पे, इसमें एक जरूर चीज हुई. कई लोगों को एहसास हुआ है कि ना दुनिया खत्म हुई है ना दुनिया रुकी है. दुनिया अब भी चलती जा रही है. रोज सुबह सूरज का उदय होता है और सांझ को जो है ढलता है. फूल आज भी खिल रहे हैं और आपकी दुनिया नहीं चल रही है जैसा आपको लग रहा था. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और कहीं ना कहीं आदमी रिजुविनेटेड फील कर रहा है. ऑब्वियसली जो नुकसान हुआ है, व्यावसायिक नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो अपनी जगह पर है. पर अगर हम मेंटली इस एंगल में बात करें तो अब लोगों को रियलाइज होने लग गया है that the world does not end if you sometimes take a break. Absolutely. तो वो ब्रेक एक प्लीज लीजिए सब लोग. साल में एक बार तो ब्रेक बनता है. 10-15 दिन का एक ब्रेक तो बनता है. ज्यादा लो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई कीप सीइंग यू ट्रैवलिंग. दैट कीप्स यू सो अलाइव, कनेक्टेड टू. बिल्कुल. मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर पाता हूँ क्योंकि मैं ब्रेक्स लेता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जाइज रहता हूँ. दिमाग मानसिक तौर पर हमेशा एक 20 साल के लड़के जैसी चुस्ती रहती है दिमाग में, और हर रोज एक ताजगी रहती है कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ ना कुछ करना है. और ये जरूरी नहीं कि क्योंकि आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा आपने कहा, ऐसे दिन होते हैं जब आप कम काम करते हैं, जब आपके पास कम काम होता है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है. हम कोई टिपिकल 10 to 5 की नौकरी तो कर नहीं रहे हैं. तो ऐसे में बहुत जरूरी है टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड. And what a lovely thing to say, ki take a break. What a lovely thing to say. That's why I was thinking that you are the voice of wisdom. let me not be so. एक जमाना था तब मैं भी डरती थी कहीं मैं चली जाऊं तो मेरा काम चला जाएगा. बट over the period you realize कि you need a proper break, and come back. मैंने भी लेट रियलाइज किया शुरू के
10-15 साल तो एकदम कोल्हू के बैल की तरह वो Exactly. खेत को जोतता रहा और फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, दिस इज नॉट गेटिंग एनीवेयर। तो People wait for you. रुकते हैं लोग, आपके लिए रुकते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको हाँ, चाहते हैं, तो इट्स ओके। रुकेंगे और नहीं रुकेंगे तो कोई और रुकेगा, वो नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, यू नो Exactly, exactly, काबिलियत में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, exactly. और ऐसा नहीं है कि सारा काम आप ही को करना है, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेजिंग आ, स्वाति जी, आपने इतने इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली। पहले आपने कहा कि अपने व्यवसाय के साथ जो हम काम करते हैं, कोई ना कोई और शौक पैदा कीजिए, जिसको शौक की तरह कीजिए, आगे जाके पता नहीं कब आपका लाइफ सेवियर बन जाए, और लाइफ सेवियर बने ना बने, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए तो सेवियर ज़रूर बनेगा। इट विल कीप यू एनर्जाइज्ड, इट विल कीप यू वर्किंग, इट विल कीप यू वेल ऑयल्ड बेसिकली। So which is yes, such a precious, precious yeah, guidance to give. फिर आपने कहा कि ऐसा एटीट्यूड रखिए कि डोंट डोंट थिंक कि कुछ खराब हो गया तो दुनिया खत्म हो गई है, या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ या फेलियर से दुनिया खत्म हो गई है। मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूँ, हैव एन एटीट्यूड फॉर ग्रैटिट्यूड, कि yeah, हमेशा थैंकफुल रहिए कि yeah. आप अपने, कहते हैं ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम मेरा गम कितना कम है। है। हैव दैट एटीट्यूड। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई तकलीफ में हो, आप किसी तकलीफ में हो तो थोड़ा दूर जाके उस तकलीफ को देखिए ऑब्जेक्टिवली, आपको रियलाइज होगा कि आपकी तकलीफ तो बहुत कम है, and you will be able to really count your दूसरी blessing. एक बात, सॉरी टू कट यू, दूसरी एक बात मैंने रियलाइज की, हम वॉइस आर्टिस्ट जो हैं एक दूसरे से बात ही नहीं करते, Yeah, कम्युनिकेशन है ही नहीं। yeah, बिल्कुल। तो आई कीप टेलिंग जो ग्रुप है हमारा, मैं कहती रहती हूँ बातें करो एक दूसरे से। जैसे अभी ये लॉकडाउन की वजह से सब लोग पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, कैमरा से अपने ये होम सेटअप वगैरह लगाओ। अच्छा, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। मैंने एक दिन डाला, मैंने किसी ने कुछ होम सेटअप खरीदा है, देयर इज अ बिग साइलेंस। मैंने कहा करो, देयर इज नो हार्म, मैंने भी खरीदा है, आई टेल यू व्हाटएवर द डिटेल्स, चलो इन्वेस्ट इन दैट। अच्छा, मुझे कुछ बहुत काम मिलेगा इस हिसाब से नहीं, लर्न अगेन, दैट कीप्स यू बिजी अगेन, कि आपने कुछ सेटअप खरीदा, उसके पूरे टेक्निकलिटीज है वो समझ के लो, इट विल हेल्प यू। तो फिर देन देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशन, फिर किसी ने कहा हाँ मेरे पास ये सेटअप है, वो सेटअप है, सो वो कम्युनिकेशन है नहीं। तो मुझे लगता है और बातें होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। नहीं, आई बिल्कुल, लाइक व्हाट मोना इज आल्सो डूइंग, उसने खंगाल के रख दिया सबको बिल्कुल। कि डोंट जस्ट ये इस तरह का माइक खरीदो, ये खरीदो, ये आप कर सकते हो, आप सेटअप खरीदो, आप किस तरह से घर पे आप काम कर सकते हो, Absolutely. तो वो दैट वाज सो एनकरेजिंग फ्रॉम हर पॉइंट साइड, Very encouraging. Absolutely. कि बैठो मत, बैठो। आई हैव लर्न दैट फ्रॉम हर कि बैठो मत, कीप ऑन, आगे आगे चलते रहो, आगे चलते रहो। ओ गॉड, लॉकडाउन हो गया, अभी मेरे स्टूडियोज बंद हो गए, कैसे काम होगा? नो, find ways and means to keep moving forward. Oh yes, indeed. No, I mean, Mona obviously is an icon when it comes to her enterprising attitude, and so Yeah, important to learn from each other. Learn from each other. There are some things you can learn learn. from each other. There is something someone will learn from you. हमेशा रहता है। और ये आपने सही कहा एकदम स्वाति जी, कि हम एज अ कम्युनिटी वॉइस आर्टिस्ट, क्योंकि आइसोलेशन में काम करते हैं तो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। वो भी एक रीजन है कि मेंटली कई बार हम लोग मानसिक तौर पर बड़ी हलचल रहती है, और खुद को या तो अकेला महसूस करते हैं या फिर बड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। कहीं ना कहीं ये चीज बहुत साल पहले, आज से 10-12 साल पहले मैंने महसूस करनी शुरू की थी। तब से मेरे मन में एक जर्म आया था कि कोई ना कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम सब लोग एकत्रित हों, हर रोज नहीं तो साल में एक बार सही। एंड दैट वाज द जर्म दैट गिव बर्थ टू इंडिया वॉइस फेस्ट। कहीं ना कहीं ये उसमें उसी का जर्म है कि भले एक दिन है, मगर एक परिवार की और एक प्रोफेशनल कम्युनिटी की फीलिंग आती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो यही एटीट्यूड हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आए तो मेंटली, क्योंकि हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, mentally we will become much stronger as professionals, as in people, and as people, और कहीं ना कहीं this will lead to a better life for everyone, Absolutely, absolutely. Lovely. Absolutely. Are we live?
We are live. We are absolutely live. We are absolutely live. And I've got some lovely comments. Prachi says, very important point, Tai, for you. Binayfar says, such beautiful, warm, and real input. Swati, ma'am. Yushan said, attitude for gratitude is well said. We have Manju Mariel, who says, I've always had that thought in mind if I will be able to perform. Deepa Shah says that Swati ji is very sweet and being self-motivated is so important. You should invest in hobbies and follow up with them. And Sheila ji says a very practical session. And Ritu Chauhan says both of you are superb. So a lot of love coming through for you and for this session. And I can be thankful enough to all of you. But Swati ji, you know what is so amazing? अब आपको समझ में आया मैंने आपसे क्यों कहा था that I am saving the best for the last. क्योंकि मुझे पता था कि when it comes to you, you know, whatever I've known you, you've been also so loving towards me and towards everything that Sugar Medias does, whether it is India Voice Fest or whether it is any little thing that you're doing, you know, आपका जो support रहा है, and you've been so, we've had a very maternal love from you. It has been so beautiful, so pious. So मैं जानता था कि, you know, coming from you, you will not be, you will not have any, you know, idealistic things to say. आप एकदम practical, real life वाली चीजें बताएंगी. And that is exactly what you have said. You've given us not book learnings, you've given us life learnings. And I really hope that a lot of people, even after this live broadcast is over, I really hope that, you know, we are able to get this video across to every voice artist in the country at least, and let them see that how such amazing people have led their life when it comes to their mental strength, and how it is their mind. It is your mind that has been a winner. क्योंकि आवाज अंदाज तो लाखों में होता है, but very few people have the mind to be able to handle that and to navigate the highs and lows of life. And there is a Dr. Ritu Chauhan from Bhuj. She says, very motivating session. Thank you, Dr. Ritu Chauhan. Thank you. Thank you, everyone. Swati ji, thank you so much. You have been, आपकी एंट्री थोड़ी सी धमाकेदार रही, बट उसको हम लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद में जो हम इस रिकॉर्डिंग को एडिट कर देंगे, शो पोर्शन को हटा देंगे, so that people have a very seamless experience of listening to you. And this was one long session, but thank you. Longest, that's why, you know, कि मैंने सोचा मैं पूछूं कि ये लाइव चल रहा है या by the way ये रिकॉर्डिंग हो रही है. लगान बनाई आज, लगान. अब ऑस्कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, but people have given a lot of love. So, and thank you, Swati. Thank you for your patience. You were so sweet in spite of all these roadblocks. Thanks for your patience, because I was technically, I didn't know. Maybe it could be my Bluetooth earphones must have, you know, created the issue. These things have no importance when it comes to the real meat of the session, which was, you know, the stuff that you said. And a big thank you to Prachi and Binayfar and Swati ji for joining us for this very important session on mental health, and how you beautifully managed to connect a lot of things about our profession with our mental health. That is remarkable. I hope that this goes a long way in helping people to understand this topic at a deeper level. Or thank you everyone. Have a lovely evening. और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और बारिश हो रही है, तो पकोड़े खाओ और बेला चाओ.